Hello everyone. So today we'll start with the common collector characteristics of a transistor. Last class में हमने देखा था common emitter characteristics of a transistor. उससे पहले हमने देखा था the common base characteristics of a transistor. तो इसमें भी हम वही करेंगे. We'll study the input and output characteristics of a transistor that is in a common collector configuration. So what is a common collector configuration? In which the collector is kept common to both the input and the output circuits. ठीक है, अगर ये हमारा सर्किट डायग्राम है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? इन द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन the transistor is connected with collector as a common terminal. That means input जो है that is applied between the base and collector terminals and the output is taken between emitter and collector terminals. That means जो हमारी input voltage होगी that will be VBC, ठीक है, base to collector voltage, और जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी that will be VEC, emitter to collector voltage, VEC और VCE. ठीक है, और हमारा जो इनपुट करंट होगा that will be IB, that is the base current which is measured in microamperes. So we have connected a microammeter here to measure the base current. ठीक है, similarly to measure the output current, that is the emitter current, we have a milliammeter which is used to measure the output current, which is here the emitter current. तो input voltage हमारी क्या है? Input voltage है हमारी VBC, output voltage है VEC, input current है IB, output current है IE. ठीक है, और IB जो है हमारा इनपुट करंट, वो हमें पता है वो बहुत स्मॉल होता है. सो टू मेजर इनपुट करंट वी यूज अ माइक्रो एमीटर इंस्टेड ऑफ अ मिली emitter, and we have these two potentiometers R1 and R2. You already familiar with the functions of these potentiometers. They are used to vary the input and output voltages. ठीक है, we can vary the input and output voltages by changing the position of the potentiometer R1 and R2. With the help of R1 we can change the input voltage, with the help of R2 we can change the output voltage. So हमें यहाँ पे क्या स्टडी करना है? इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. उससे पहले जो है तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, जब हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो हमारी वोल्टेज है, दैट जो हमारी इनपुट वोल्टेज है, दैट शुड फॉरवर्ड बायस द एमीटर बेस्ड जंक्शन and reverse biases the collector based junction of the transistor. मैंने तुम लोगों को ये चीज पहले बताई थी कि regardless of the connection type, हम जब भी जो है, चाहे हम कॉमन बेस ले, कॉमन एमीटर ले या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ले, हमेशा जो हमारा एमीटर बेस्ड जंक्शन होता है दैट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होता है दैट इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड. तो सेम जो है इसके लिए भी अप्लाई करेगा. तो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है दैट विल फॉरवर्ड बायस द एमीटर बेस्ड जंक्शन, और हमारा जो VCC है, ठीक है, दैट विल रिवर्स बायस द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर. यहाँ पर जो हमारा इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो कलेक्टर है दिस इज नॉट एट DC ग्राउंड, दिस इज एट AC ग्राउंड. ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं? It is due to the fact that the voltage of the DC supply source VCC, it has zero resistance to an AC signal. Next, here we'll measure the output across the resistor RE, which is connected from emitter to the ground. इसका मतलब क्या है? देखो इस सर्किट डायग्राम को देखो, यहाँ पर एमीटर और ग्राउंड के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करा है RE. यहाँ पे इन्होंने RL डिनोट करा है, तो लेट्स से दिस इज RL. So where we are measuring the output, देखो यहाँ V नॉट लिखा है ना, we are measuring the output across this resistance RL that is connected from the emitter to the ग्राउंड. हमारी जो आउटपुट करंट है वो हमारा IE है, और जो आउटपुट वोल्टेज है हमारी वो VEC और यू कैन से VCE है. Here we are measuring the output across the resistor RL. ठीक है, और इसका जो सर्किट है हम उसको इस तरीके से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है हमारी सप्लाई होगी दैट विल बी द VCC
supply. So this is how we can connect a transistor in common collector configuration. इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये ज्यादा डिटेल में भी नहीं करना, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर जो है उनको 3 कॉन्फ़िगरेशंस में कनेक्ट कर सकते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, ठीक है। कॉमन बेस में हमारा क्या होता है, कॉमन बेस अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो बेस है दैट विल बी कंसीडर्ड एज द कॉमन टर्मिनल। इनपुट जो है हमारा दैट विल बी अप्लाइड बिटवीन द एमीटर एंड बेस, और जो आउटपुट है हमारा दैट विल बी टेकन बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस। सिमिलरली कॉमन एमीटर के लिए एमीटर विल बी द कॉमन टर्मिनल, इनपुट जो है दैट विल बी अप्लाइड बिटवीन द बेस एंड एमीटर, और जो आउटपुट है दैट विल बी टेकन बिटवीन द कलेक्टर एंड एमीटर terminals, ठीक है। This is the most commonly used connections of a transistor. Now next we have common collector connection. इसमें क्या होता है, collector जो है that will be acting as the common terminal. So input जो है that will be applied between the base and collector terminal, and output जो है that is taken between the emitter and collector टर्मिनल। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हम ट्रांजिस्टर जो है उसको 3 कॉन्फ़िगरेशंस में कनेक्ट कर सकते हैं, और उन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस में किस किस तरीके से हमारे कनेक्शंस होते हैं। कॉमन बेस में बेस इज एक्टिंग एज द कॉमन टर्मिनल, कॉमन एमीटर में एमीटर है, कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर है, ठीक है। और इस चीज का और ध्यान रखना है, रिगार्डलेस ऑफ द कनेक्शन टाइप, एमीटर बेस्ड जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइज्ड एंड द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बाइज्ड, ठीक है। और ज्यादा कुछ इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बस तुम्हें क्या स्टडी करना है, द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑल दी 3 कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। और तुम्हें अगर पता है कि हम बेस कॉमन रख रहे हैं या एमीटर कॉमन रख रहे हैं या कलेक्टर टर्मिनल कॉमन रख रहे हैं, सो व्हाट विल बी द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस, व्हाट विल बी द इनपुट एंड आउटपुट करंट, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट वील स्टडी द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हम जो है कर्व बनाएंगे बिटवीन द इनपुट करंट एंड द इनपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन और फॉर अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ इनपुट करंट हमारा क्या होगा, द बेस करंट IB विच इज मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है। व्हाट विल बी द इनपुट करंट विल बी VCB और VBC भी लिख सकते हो, बेस टू कलेक्टर वोल्टेज और द कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, ठीक है। इसको VBC से भी डिनोट कर सकते हो, VCB से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज दैट विल बी केप्ट फिक्स्ड विल बी VCE, इसको VCE भी लिख सकते हो, VEC भी लिख सकते हो, ठीक है। तो VCE हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, एंड VCB is representing the collector base voltage, VCE is representing the collector emitter voltage. Now next, in this case we keep collector emitter voltage fixed by keeping the position of the variable point of R2 fixed, ठीक है। हमने पोटेंशियोमीटर R2 की हेल्प से उसकी पोजीशन को सेट करके VCE को एक वैल्यू पे हमने सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो R1 पोटेंशियोमीटर है उसकी पोजीशन को चेंज करके we will measure the base current IB for different values of collector base voltage for different values of input voltage। जो हमारी इनपुट वोल्टेज है VCB उसको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर V1, और जो हमारा इनपुट करंट है IB उसको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो एमीटर दैट इज कनेक्टेड टू द बेस टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ VCB इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर V1, ठीक है। देयर विल बी अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ बेस करंट। यहाँ पर देखो ग्राफ में क्या दिख रहा है, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VCE एज वी इंक्रीज VCB IB डिक्रीजेस, बेस करंट जो है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कलेक्टर बेस वोल्टेज, ठीक है। और जो बेस करंट है दैट इज मेजर्ड बाय माइक्रो एमीटर, एंड हियर वी हैव सीन इन द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द बेस करंट IB decreases with the increase in value of collector base voltage or the input voltage. Now अब ऐसा क्यों हो रहा है, why for a particular value of VCE IB जो है it decreases with increase in VCB। उसके बाद आगे एक चीज और देखो,
जैसे जैसे हम VCE की वैल्यू जो है उसको बढ़ा रहे हैं, हमारा जो करंट है IB जो है वो बढ़ रहा है, बट जैसे जैसे VCB को हम बढ़ा रहे हैं, IB जो है हमारा वो घट रहा है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VCE. But as VCE increases, IB जो है it increases with VCB. Now ये क्यों हो रहा है? This you can see from here. जो हमारी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ कलेक्टर बेस प्लस एमीटर बेस वोल्टेज. ठीक है, इस रिलेशन को याद रखना है. जैसे हमारा IE होता है ना इक्वल टू IB प्लस IC, उसी तरीके से हमारा VCE इक्वल होता है VCB प्लस VEB के. नेक्स्ट हमारा VCB क्या है? यहाँ से VCB आ गया VCE माइनस VEB. ठीक है, और यू कैन राइट VEB, दिस थिंग इज इक्वल टू VCE माइनस VCB. VEB इज इक्वल टू VCE माइनस VCB. ठीक है, सो फ्रॉम रिलेशन 7.18 फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ VCE. VCE जो है हमने उसको कांस्टेंट रखा. ठीक है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ VCE, if VBC will increase, अगर VCE को हमने कांस्टेंट रख लिया लेट्स से एट 2 volts, ठीक है, then we are increasing VCB और VBC, we are increasing the input voltage. Then what happens if VBC will increase? That means the VEB it will decrease. ये हमारा कांस्टेंट है, ये अगर इंक्रीज करेगा तो हमारी ये वैल्यू डिक्रीज करेगी. VEB हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इज द एमीटर बेस वोल्टेज. ठीक है, अगर हमारा VEB डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो एमीटर जंक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अगर हम NPN ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस की तरफ जो है ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रीच नहीं कर पाएंगे इफ VEB विल डिक्रीज. अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे बेस पे नहीं आ पाएंगे तो जो है रिकॉम्बिनेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का वो भी कम हो जाएगा, और दैट जो है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस करंट. तो if small number of electrons will reach the base, then in that case recombination of electrons with holes decreases, so in turn the base current will also decrease. ठीक है, so this is the reason why with increase in VCB for a particular value of VCE, IB decreases. IB decreases because of the decrease in ammeter base voltage. ठीक है, this decrease in ammeter base voltage will result in the decrease of base करंट. ठीक है, ये ऑलरेडी जो है इस टाइप की एक्शन जो है NPN ट्रांजिस्टर का हम सबसे फर्स्ट हमने लेक्चर में देखा था व्हेन वी स्टार्टेड विद ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, एमीटर बेस वोल्टेज अगर हमारी बढ़ेगी देन इन दैट केस ऑब्वियसली हमारा एमीटर करंट भी बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है दे विल रीच टू द कलेक्टर फ्रॉम द बेस. तो उस केस में हमारा बेस करंट भी बढ़ेगा, कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा. ठीक है, तो if VEB will decrease then obviously the base current will also decrease. So this is about the input characteristics. हमने यहाँ पे दो चीजें देखी. पहली चीज क्या है? For a particular value of VCE, IB decreases with increase in VCB. Second हमने क्या देखा? When VCE increases then the base current increases with increase in VCB. Next we have the output characteristics. ठीक है, आउटपुट हमारा किसके बीच में है? एमीटर और करंट. सो इसको हम सॉरी हमारा आउटपुट किसके बीच में है? और एमीटर करंट कलेक्टर क्या लिखा है ये? आउटपुट और अच्छा आउटपुट हमारा जो है एमीटर और कलेक्टर के बीच में है. ठीक है, हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज VEC. आउटपुट करेक्टरिस्टिक हमारी क्या होती है? दिस इज द ग्राफ बिटवीन द आउटपुट करंट विच इज द एमीटर करंट and the output voltage which is the collector emitter voltage for a constant or given value of input current which is IB. So output characteristics को हम ये भी कह सकते हैं emitter current, collector emitter voltage characteristics. ये एक साथ लिख रखा है, थोड़ा confusing लग रहा है. This is emitter current,
and collector emitter voltage characteristics. That means it is the graph between the output current and the output voltage for a constant input current. So in this case, our base current जो है that is kept constant. So for a particular value of base current, we are measuring the different values of emitter current for different values of collector emitter voltage, and then we are plotting a graph between IE and VCE, and then we increase the value of IB, and then we'll see what happens to the curve plotted between IE and VCE. So this is our output characteristic curve. VCE जो है हमारा, हमने पहले इनपुट करंट IB को कांस्टेंट रखा, फिर हमने कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जो है उसको हम वेरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ R2. Now this voltage जो है we can measure from the voltmeter V2 that is connected in the output circuit, and the emitter current IE जो है that is measured with the help of milliammeter that is connected to the emitter terminal. Now then we'll plot a graph between IC and VCE. ठीक है, then we'll repeat this experiment for different values of IB. IB को हम धीरे धीरे increase करेंगे, and then we'll see what happens to IE with increase in VCE. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो हमारे कर्व्स आए हैं they are somewhat similar to those obtained from common emitter configuration. Now the curves depict, इस कर्व से हमें क्या क्या चीजें पता चल रही हैं. The first point is for a given value of base current, for a given value of base current, हमने जब IB को fix कर दिया at some value, then what happens with increase in output voltage, सबसे पहले जो हमारा emitter current है it increases rapidly, and then the increase becomes very slow. ठीक है, सबसे पहले जो है it for low values of VCE it is increasing rapidly. Suppose I'm talking about 40 microampere at IB is equal to 40 microampere. When VCE increases, emitter current increases rapidly, and after that it increases at a very slow rate. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा क्या बताता है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ VCE द एमीटर करंट इंक्रीजेस विद द बेस करंट. इसका मतलब क्या है, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VCE, सपोज मैं इस वैल्यू के लिए देख रही हूँ, यहाँ पर जब IB हमारा 20 है, करंट हमारा इतना है, जब IB हमारा 30 माइक्रो एम्पियर है, एमीटर करंट इतना मिली एम्पियर है, जब IB 40 माइक्रो एम्पियर है तब हमारा एमीटर करंट इतना मिली एम्पियर है. सो दिस शोज दैट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज VCE द एमीटर करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन बेस करंट. IE हमारा क्या होता है, IB प्लस IC, तो अगर बेस करंट बढ़ेगा देन एमीटर करंट विल आल्सो increase. So for a given value of VCE the emitter current increases with the increase in base current. Here what we can conclude, इस चीज को ध्यान रखना है, इनपुट रेजिस्टेंस जो होती है when we connect a transistor in common collector configuration, तो जो इनपुट रेजिस्टेंस है हमारी, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होती है हमारी, it is the ratio of change in input voltage to the change in input current for a constant value of output voltage. I'm repeating it again. What is the definition of input AC resistance? This is the ratio of change in input voltage to the change in input current for a constant value of output voltage. Here in common collector configuration, this input resistance is the highest. जो हमारी इनपुट रेजिस्टेंस है वो हाईएस्ट होती है, जो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस है वो लोवेस्ट होता है. आउटपुट रेजिस्टेंस जो है हमारा इट इज द लोवेस्ट. जो करंट गेन है हमारा दिस इज वेरी लार्ज, और जो वोल्टेज गेन होता है इट इज लेस देन यूनिटी. अब यहाँ पर देखो इनपुट रेजिस्टेंस हमारी सबसे ज्यादा क्यों होगी, देखो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो हमारा, मैंने बाय डेफिनेशन बता दिया, वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, दैट विल बी डेल्टा VCB अपॉन डेल्टा IB फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VCE. अब देखो IB जो है हमारा इट इज मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर्स, तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा रेजिस्टेंस की में 10⁻⁻⁶, तो जब वो न्यूमरेटर में आएगा तो इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा. तो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि हमारा जो इनपुट, जो हमारा
बेस करंट है वो बहुत कम है, बेस करंट कम है एंड दैट इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ द रेजिस्टेंस, सो दैट मींस जो हमारी इनपुट रेजिस्टेंस है वो हमारी बहुत ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे देखो VCB हमारा वोल्ट्स में है, IB माइक्रो एम्पियर में है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा VCB अपॉन डेल्टा IB। सो दिस शोज दैट since base current is very small, that means the input resistance will be the highest, since input current जो है this is very small। नेक्स्ट वी आर सेइंग दैट आउटपुट रेजिस्टेंस जो है हमारी दैट इज लोवेस्ट। आउटपुट रेजिस्टेंस हमारी लोवेस्ट क्यों है, आउटपुट रेजिस्टेंस है हमारा डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IE फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। ठीक है, दैट इज अगर हम यहाँ पे 2 पॉइंट ले लें, ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे हम इसको एक्सटेंड करें तो हम इनपुट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, it will be delta VCE upon delta IE for a particular value of IB। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में ये देखा गया जो हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में दैट कम्स आउट टू बी द लोवेस्ट, IE is equal to IB plus IC। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जब हम कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो उस केस में हमारा क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर एमीटर वोल्टेज हमारा क्या है, दिस इज बेसिकली द सम ऑफ VCB प्लस VEB। दैट मींस अगर हम कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो हम VCB और VEB इनके सम को बढ़ा रहे हैं। तो अगर हमारी जो VEB और VCB बढ़ेगा, सो दैट मींस व्हाट विल हैपन, हमारा जो लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे विल फ्लो फ्रॉम द एमीटर टू द कलेक्टर। सो इन दैट केस आवर एमीटर करंट जो है इट विल इंक्रीज फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ IB। IB को हमने कांस्टेंट रख लिया, IE is equal to IB plus IC। IB हमारा कांस्टेंट है, when we increase VCE then what happens, हमारा जो IC है वो भी बढ़ता है और जो हमारा IE है वो भी बढ़ता है। So if current is increasing that means the resistance is decreasing। So output resistance जो है it is the lowest in common collector configuration। Next the current gain here is very large, वो हम अभी बताएंगे कि क्यों होता है। And voltage gain जो है it is less than unity। voltage gain हमारा क्या होता है, basically it is the ratio of output voltage to the input voltage। current gain हमारा क्या होता है, it is the ratio of output current to the input current, कि कितना current में gain हुआ है। ऐसे ही voltage gain हमारी होती है the ratio of output voltage to the input वोल्टेज। तो वोल्टेज गेन जो है इस केस में इट कम्स आउट टू बी लेस देन यूनिटी। ऐसा क्यों होता है, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, जो इनपुट वोल्टेज है वो भी होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो आउटपुट वोल्टेज में जो हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस है वो लोवेस्ट है, इनपुट वोल्टेज में जो हमारी इनपुट रेजिस्टेंस है वो हाईएस्ट है, तो डिनोमिनेटर हमारा ज्यादा है, दैट मींस हमारी वोल्टेज गेन जो है वो कम होगी। So the voltage gain is comes out to be less than unity when we have a transistor in common collector configuration। तो इन चार चीजों को जो है ना तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। कॉमन कलेक्टर में इनपुट रेजिस्टेंस हाईएस्ट है, आउटपुट रेजिस्टेंस लोवेस्ट है, करंट गेन हमारा बहुत ज्यादा होता है, वोल्टेज गेन जो है इट इज लेस देन यूनिटी। नेक्स्ट ये क्या कहता है, जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है सर्किट का इसको हम एमीटर फॉलोअर सर्किट भी बोलते हैं। दिस सर्किट विल बी डिस्कस्ड लेटर इन द नेक्स्ट चैप्टर, ये हम आगे पढ़ेंगे वहां तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर का इसको हम एमीटर फॉलोअर सर्किट भी बोलते हैं। नाउ व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ कॉमन बेस के केस में जो करंट गेन था दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा, कॉमन एमीटर के केस में करंट गेन जो है दैट इज डिनोटेड बाय बीटा। इस दोनों के बीच में हमने रिलेशन भी निकाला था, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। चाहे एसी करंट गेन हो चाहे डीसी करंट गेन हो, रिलेशन यही रहेगा, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। जो हमारा करंट गेन है कॉमन कलेक्टर में उसको हम डिनोट करते हैं बाय गामा। अगर एसी करंट गेन है तो गामा एसी होगा, डीसी करंट गेन है तो गामा डीसी होगा।
एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द करंट गेन। तो बाय डेफिनेशन ये क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा आउटपुट करंट क्या है, द एमीटर करंट, और हमारा इनपुट करंट क्या है, द बेस करंट। सो मैथमेटिकली वी कैन राइट एसी करंट गेन in common collector configuration as the ratio of change in emitter current to the change in base current। ठीक है, और अब हम इसको यहाँ पर निकालेंगे, द रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा एंड द रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा। अब ये देखो जो करंट गेन जो है इट कम्स आउट टू बी वेरी हाई। हमने यहाँ पे लिखा है ना, द करंट गेन इज वेरी लार्ज इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये चीज हम यहाँ से भी देख के पता लगा सकते हैं। हमारा जो बेस करंट है वो माइक्रो एम्पियर में है और जो हमारा एमीटर करंट है वो मिली एम्पियर में है। तो अगर हम उनके यूनिट्स की बात करें तो 1000 का फैक्टर तो उसमें वैसे ही आ गया न्यूमरेटर में। ठीक है, सो फ्रॉम हियर ऑल्सो वी कैन सी दैट the current gain in common collector configuration is very large। ये यहाँ पर भी लिखा है, its value is slightly more than beta as delta IE is slightly greater than delta IC। बीटा हमारा क्या होता है, the current gain in common emitter configuration, वो हमारा क्या होता है by definition, it is delta IC upon delta IB। गामा हमारा क्या है, डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IB, where डेल्टा IE हमारा क्या होगा, डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा IE को आई कैन राइट डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 प्लस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। व्हाट इज डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, इट इज बीटा। तो यहाँ से वी कैन से दैट द रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा इज गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो अगर हमने ऑलरेडी ये देखा ही था कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा जो है वो हमारा बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर तो 1 का फैक्टर ऐड भी हो रहा है। सो दैट मीन्स जो हमारा एसी करंट गेन या डीसी करंट गेन है इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, it is slightly more than beta, or you can say that if beta is very large it is nearly equal to beta, so we can say that it is greater or nearly equal to beta। alpha तो हमें पता ही है, it comes out to be less than 1। बीटा जो है वो भी मैंने बताया था, वो हमारा जो है उसकी रेंज कितनी होती है, दैट रेंजेस फ्रॉम आई थिंक 25 टू 25 टू 250 तक जो है हमारी बीटा जो है उसकी रेंज जाती है। और यू कैन से, अगर इसको राउंड ऑफ करूं तो बीटा जो है इट यूजुअली यू कैन से वेरी फ्रॉम 20 टू 250। आई गेस मैंने 20 ही बताया था, लास्ट क्लास में इसको चेक कर लेना। जो हमारा बीटा है, the current gain in common emitter configuration it varies from 20 to 250। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना। लास्ट क्लास में जब मैंने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कराया था वहां पे मैंने ये चीज बताई थी, तब मैंने यही बताया होगा। ठीक है, और हमारा जो एसी करंट गेन या डीसी करंट गेन है इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इट इज 1 प्लस बीटा टाइम्स, सो ऑब्वियसली इट इज 1 प्लस बीटा, सो ऑब्वियसली आर AC current gain or DC current gain in common collector configuration is more than beta, or you can say that it is slightly more than beta, or we can say that the current gain in common collector configuration is nearly equal to beta। If beta is very large we can neglect 1 in comparison to beta। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने रिलेशन तो देख लिया गामा और बीटा के बीच में। नेक्स्ट थिंग, द रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा। अल्फा हमारा क्या होता है, अल्फा इज द करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो अल्फा हमारा बाय डेफिनेशन क्या आता है, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। दिस वन alpha is delta IC upon delta IE if I am talking about the AC current gain। DC current gain क्या होगा, IC upon IE। तो by definition gamma AC is delta IE upon delta IB। डेल्टा IE हमारा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC। ठीक है, तो वहां से डेल्टा IB हमारा क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू डेल्टा IE माइनस डेल्टा IC। ये हमारा कहाँ से आया रिलेशन, आई होप ये सबको पता है दैट IE जो हमारा एमीटर करंट होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट।
तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं ऑन बोथ साइड, सो आई कैन राइट इट एज डेल्टा आई ई इज इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी. So what will be delta IB? It will be delta IE minus delta IC. So substitute it over here. Now divide the numerator and denominator by delta IE. What we'll get? We get 1 upon 1 minus delta IC upon delta IE. What is delta IC upon delta IE? It is alpha AC. So from here we can get the relation between gamma and alpha. It shows that gamma AC is equal to 1 upon 1 minus alpha AC, or gamma DC is also equal to 1 upon 1 minus alpha DC. So we can say that in general the relation between alpha and gamma is equal to 1 upon 1 minus alpha. Next, the relation between gamma and beta, ये मैं already अभी ऊपर बता चुकी थी. Gamma जो है it comes out to be 1 plus beta, where beta is delta IC upon delta IB. तो यहाँ से जो है we can easily say that the current gain in case of common collector configuration is very large. ठीक है, जो यहाँ पर इन्होंने लाइन लिखी है, the current gain is very large. ये चीज हमने यहाँ से देख ली कि how the current gain in common collector configuration is very large, since it is 1 plus beta and beta is already very large, ranging from 20 to 250. So gamma जो है it is obviously we can say that slightly greater than beta. ठीक है, तो आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज गामा, एंड व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा. दिस इज important from your examinations point of view, and this is also important when you have to do the numericals which deals with current gain. ठीक है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, और जो है बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है इसका ये डेरिवेशन भी. ठीक है, तुम लोगों को पता है बीटा is the current gain in common emitter configuration, alpha is in the common base configuration, gamma is in the common collector configuration. And what are the relations? Beta is equal to alpha upon 1 minus alpha. This is the relation between alpha and beta. The relation between gamma and alpha is gamma is equal to 1 upon 1 minus alpha, and the relation between gamma and beta is gamma is equal to 1 plus beta. नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे? हमने ये देखा इनपुट रेजिस्टेंस हाई होती है, हाईएस्ट होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस लोवेस्ट होती है, करंट गेन बहुत ज्यादा होता है, और वोल्टेज गेन जो है इट इज लेस देन यूनिटी. वोल्टेज गेन हमारा बाय डेफिनेशन क्या होता है? दिस इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज. मतलब न्यूमरेटर में हमारा आएगा आउटपुट रेजिस्टेंस और डिनोमिनेटर में आएगा इनपुट रेजिस्टेंस. और ये हमें पता है दैट इन केस ऑफ अ कॉमन कलेक्टर सर्किट इनपुट रेजिस्टेंस जो है हमारा वो बहुत ज्यादा होता है, while the output resistance is very low. And this output resistance, it comes in the numerator of voltage gain, and this input resistance, it comes in the denominator of voltage gain. So therefore we can say that voltage gain in this case is less than 1. ये experimentally measure किया गया था, and this voltage gain comes out to be less than 1. अब देखो इस केस में जो हमारा वोल्टेज गेन है वो कम होता है जब हम ट्रांजिस्टर को कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं. इस वजह से हम इस सर्किट को यूज नहीं करते फॉर एम्प्लीफिकेशन. हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते टू बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, to use this transistor as an amplifier. Why? Amplifier का मतलब क्या होता है? ये हमारा amplify करता है वोल्टेज को. ठीक है, it amplifies the power. तो वोल्टेज को ये amplify कर रहा है, और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा वोल्टेज गेन है वो ही कम होता है. ठीक है, so this is the reason this circuit is not used for amplification. अभी हम आगे इसके बारे में थोड़ा और भी देखेंगे. What is amplification? Why we use common emitter configuration of a transistor for an amplifier, not the common collector. Next ये क्या कहता है? What is the main application of transistor in common collector configuration? The main application is this circuit is generally used for impedance matching. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा अबाउट कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखी, फिर हमने करंट गेन देखा, देन वी found the relation between gamma and alpha and gamma and beta.
और हमने ये भी देखा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है दैट इज हाईएस्ट, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है दैट इज लोवेस्ट, करंट गेन इज वेरी लार्ज इक्वल टू 1 प्लस बीटा while voltage gain is less than unity. Now next we'll see the current relation in common collector configuration. जैसे हमने common base में भी निकाला था, common emitter में भी, अब हम common collector में भी निकालेंगे. देखो this is the well known relation IE is equal to IB plus IC. Also ये हमने relation जो है already जो है देखा था, IC is equal to alpha DC into IE plus ICBO. ठीक है, ये रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं एक बार दिखा देती हूँ अगर तुम लोगों को नहीं याद है तो. ये दिस वन IC is equal to alpha DC IE plus ICBO. मैंने ऑलरेडी बताया था ये जो ICEO है, ये जो ICO लिखा हुआ है, this is actually ICBO, the collector to base voltage with emitter open. यहाँ पर इन्होंने ICO को ICBO ही लिख रखा है. तो ये रिलेशन हमारा कहाँ से आया था? ये आया था when we were doing the common base configuration, when we have connected the transistor in common base configuration. तो वहां हमारे पास आया था जो हमारा टोटल कलेक्टर करंट था that is equal to the sum of the injected current which is because of the flow of majority charge carriers and the reverse saturation current ICBO which is flowing because of the reverse biasing of collector base junction. ये हमने रिलेशन तब ऑलरेडी देखा था. ठीक है, यहाँ पे हमने अल्फा के नीचे DC क्यों लिखा है? क्योंकि हम यहाँ ICIE लिख रहे हैं, डेल्टा IC और डेल्टा IE नहीं लिख रहे. ठीक है, अब क्या होगा? नाउ सब्स्टिट्यूट दिस रिलेशन इन दिस इक्वेशन 7.20. so what we'll get now, IE is equal to IB. We have substituted the value of IC using this equation, alpha IE plus ICBO. तो यहाँ से हमारे पास IE क्या आ गया? IE into 1 minus alpha DC equal to IB plus ICBO. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? देखो हम ये क्यों लिखते हैं? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो आउटपुट करंट था IC, उसको हमने लिखा था इन टर्म्स ऑफ करंट गेन एंड द रिवर्स सैचुरेशन करंट. ठीक है, उसके बाद हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें जो हमारा आउटपुट करंट था उसको भी हमने लिखा था इन टर्म्स ऑफ उसका करंट गेन. कॉमन एमीटर में करंट गेन क्या है? बीटा. और कॉमन एमीटर में जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो है ICEO, द कलेक्टर टू एमीटर करंट विद बेस ओपन. ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अब हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें भी हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं आउटपुट करंट को इन टर्म्स ऑफ गामा एंड द रिवर्स सैचुरेशन करंट. अब वो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या आता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये वेल नोन रिजल्ट यूज किया, फिर हमने ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का रिजल्ट यूज किया, फिर हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इन द एक्सप्रेशन IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. यहाँ से हमारा IE क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड पे IE इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू IB प्लस ICBO. सो यहाँ से IE हमारा हो गया 1/1 माइनस अल्फा इंटू IB प्लस ICBO upon 1 minus alpha. Now 1/1 minus alpha को I can write as 1 plus beta. ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? देखो ये यहाँ पर भी इन्होंने शो कर रखा है और यहाँ से भी देखो गामा हमारा कितना है? 1/1 माइनस अल्फा और गामा हमारा कितना है? 1 प्लस बीटा. सो दिस शोज दैट 1/1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा. ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने शो भी कर रखा है. कैसे आया? देखो अल्फा DC हमारा क्या है? दिस इज द DC करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. सो दिस इज इक्वल टू IC अपॉन IE, आउटपुट करंट टू द इनपुट current in common base configuration. It can be written as IE upon IE minus IC. We know IE हमारा कितना होता है? IC plus IB. And what is IE minus IC? This is IB. So this gives IC upon IB plus 1, which is 1 plus beta. ठीक है, so we'll substitute this expression here.
in 7.21. So what we'll get now the output current in common collector configuration, that means the emitter current is equal to 1 upon 1 minus alpha ko we substitute by 1 plus beta. So it will be 1 plus beta into IB plus 1 plus beta into ICBO. ठीक है. If we neglect the reverse leakage current ICBO, अगर हम कहते हैं reverse leakage current हमारा ICBO जो है वो बहुत small है, in that case हमारा IE कितना हो जाएगा 1 plus beta IB, or you can say 1 plus beta is IE upon IB. What is 1 plus beta? This is gamma. So from here we can get that for a very small or negligible reverse leakage current ICBO, the current gain in common collector configuration is the ratio of output current to the input current, emitter current to the base current. So this is the DC current gain in common collector configuration, which is denoted by gamma, and this current gain is very large and is maximum. So gamma DC जो है हमारा, this is 1 plus बीटा, और ये हमने पहले भी निकाला था. तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, हमने आउटपुट करंट जो है उसकी एक्सप्रेशन निकाल ली इन टर्म्स ऑफ गामा. 1 प्लस बीटा हमारा क्या है, गामा. यहाँ पर भी गामा आएगा, यहाँ पर भी गामा आएगा. ठीक है. तो यहाँ से हमने आउटपुट करंट की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ करंट गेन गामा फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. ऐसे ही हमने पहले IC की निकाली थी, और यहाँ पर भी अगर हम कहते हैं कि if this leakage current is very small then this alpha becomes IC upon IE. यही होता है हमारा alpha IC upon IE. इसी तरीके से यहाँ पर भी if we consider this leakage current to be very small, then gamma becomes IE upon IB, which is the DC current gain in common collector configuration, and its value is very large and is maximum. Maximum क्यों है? Alpha की तो less than 1 है, बीटा की जितनी भी वैल्यू होगी गामा की वैल्यू से ज्यादा ही होगी 1 प्लस बीटा. सो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में वी गेट द लार्जेस्ट करंट गेन, पर वोल्टेज गेन जो है इसका बहुत कम होता है. ये जो है इसका एक ड्रॉबैक है. नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या देखेंगे, वी विल सी सम पैरामीटर्स of the transistor in common base and common collector configuration. अब यहाँ पर हमारा एक तरीके से ट्रांजिस्टर्स जो है वो खत्म हो चुका है. ट्रांजिस्टर्स के जो 3 configurations थे, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की इनपुट आउटपुट, कॉमन एमीटर की इनपुट आउटपुट और कॉमन कलेक्टर की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी कर ली. देन उसके बाद हमने तीनों के करंट गेन्स जो है वो देखे, और तीनों के करंट गेन्स के बीच में हमने रिलेशन भी डिराइव किया. Now we'll study some of the parameters of the transistor in common base and common emitter configuration. ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन. तो पहला पैरामीटर हम कंसीडर करेंगे द इनपुट रेजिस्टेंस. हियर इट इज रिटन इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस, दैट मींस द इनपुट एसी रेजिस्टेंस. इनपुट एसी रेजिस्टेंस कॉमन बेस मोड में क्या है, the ratio of change in output, sorry, the input AC resistance for a common base mode, it will be the ratio of change in input voltage to the change in input current for a constant output voltage. ठीक है. input current क्या होगा common base में, IE, input voltage क्या होगी, VEB. तो हमारा RI क्या आ गया, डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा IE फॉर अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज. कॉमन बेस मोड में व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज, द VCB. ठीक है. ये हमारा रिलेशन होता है, ये हमने ऑलरेडी जो है पूरा अच्छे से इन डिटेल पढ़ा था when we were doing the input characteristics of a transistor in common base configuration. और वहां हमने बताया था जो इनपुट AC रेजिस्टेंस है कॉमन बेस मोड में वो बहुत कम होता है. कितना बताया था मैंने, it is of the order of, or you can say it is around 50 ohms. Next, in the common emitter configuration, common emitter configuration में the input AC resistance is given by this, the ratio of change in input voltage which is VEB to the change in input current which is IB for a constant value of input current, for a constant value of output
वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज हमारी कॉमन एमीटर मोड में क्या होगी, VCE। ठीक है, इनपुट AC रेजिस्टेंस हमारा बाय डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट वोल्टेज to the change in input current for a given or constant value of output voltage। ठीक है, तो कॉमन एमीटर मोड में दिस इज द इनपुट AC रेजिस्टेंस, और ये हमारा कितना आया था, मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है इट वेरीज फ्रॉम 600 to 4000 ohms। ठीक है, नियर अराउंड इसका वेरिएशन जो है इतना होता है 600 to 4000 ohms। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इनपुट AC रेजिस्टेंस इन कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसका इन्होंने अब यहाँ पर जो है इसको टेबल में भी, टेबुलर फॉर्म में भी यहाँ पे लिखा है, इनपुट AC रेजिस्टेंस कॉमन बेस में बहुत लो होता है। हियर इट इज रिटन दैट इट इज अराउंड 20 ohms। इसकी यही रेंज होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 20, 30, 40, 50 ohms। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हमारा इस केस में इनपुट AC रेजिस्टेंस जो है 600 to 4000 ohms की रेंज मैंने बताई थी। सो वी कैन से दैट इट इज अराउंड 1 किलो ओम, सो इट इज लो। ठीक है, इनपुट AC रेजिस्टेंस कॉमन बेस में वेरी लो, कॉमन एमीटर में इट इज लो। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द आउटपुट AC रेजिस्टेंस। आउटपुट AC रेजिस्टेंस क्या होता है, बाय डेफिनेशन इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन आउटपुट करंट for a given or constant value of input current। तो ये भी हम ऑलरेडी देख चुके थे। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारी आउटपुट AC रेजिस्टेंस थी इट कम्स आउट टू बी वेरी हाई। ठीक है, कितनी आई थी हमारी, 500 किलो ओम्स के अराउंड थी, और ये मेगा ओम्स तक जाती है। ठीक है, इतनी ज्यादा होती है, यू कैन से दैट इट इज वेरी हाई, अराउंड 500 किलो ओम्स, एंड इट also goes to mega ohms। mega means 10 raised to power 6 ohms I'm talking about। ठीक है, यही हो गया ना। देखो अगर मैं इसको कहती हूँ 500 किलो ohms, that means 5 into 10 raised to power 5 ohms। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ 5000 किलो ओम्स तो ये क्या हो गया, 5 मेगा ओम्स। ठीक है, तो ये मेगा ओम्स तक जाता है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है, बट इतनी हाई नहीं होती जितनी कॉमन बेस में होती है। इट वेरीज अराउंड 10 to 50 किलो ओम्स। ठीक है, 10 से 50 किलो ओम्स तक जो है इट वेरीज। ठीक है, ये एक रफ वेरिएशन बताया है। ठीक है, कि इसके अराउंड, इसके ऑर्डर के आसपास ये रहती हैं। अब हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं, वहां क्या लिखा है। जो आउटपुट AC रेजिस्टेंस है कॉमन बेस में इट इज वेरी हाई, अराउंड 1 मेगा ओम्स, और जो कॉमन एमीटर में है इट इज हाई, अराउंड 10 किलो ओम्स। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी द करंट गेन। करंट गेन हमें पता है, ये तो अब याद ही हो गया होगा तुम लोगों को, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इट इज लेस देन यूनिटी। ठीक है, और जितना ज्यादा करंट गेन होगा उतना ही बेटर होगा हमारा ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जितना ज्यादा करंट गेन का मतलब जितना ज्यादा इट इज क्लोज टू यूनिटी। नेक्स्ट हमारा जो करंट गेन है इट इज क्वाइट हाई फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑलरेडी मैंने बताया था 20 to 250 ये वेरी करता है। ठीक है, तो हाई करंट गेन की वजह से इट मेक्स इट पॉसिबल टू हैव ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स। दैट मीन्स जो हमारा ट्रांजिस्टर है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में उसका जो करंट गेन है वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से वी यूजुअली यूज दिस मोड ऑफ ट्रांजिस्टर टू बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, लेकिन अब ये तो कॉमन कलेक्टर में भी होता है। कॉमन कलेक्टर में तो करंट गेन इससे भी ज्यादा होता है, इट इज 1 प्लस बीटा, पर उसको हम यूजुअली इतना यूज नहीं करते जितना हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि करंट गेन तो ज्यादा है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, बट वोल्टेज गेन बहुत कम है, इट इज लेस देन यूनिटी। तो ये एक ड्रॉबैक आ जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई वी डू नॉट यूज फ्रीक्वेंटली common collector configuration of a transistor to be used as an amplifier। Usually we consider common emitter configuration of a transistor। इसका करंट गेन जो है हमने देखा वो ज्यादा होता है, इसका जो वोल्टेज गेन है हमारा वो भी ज्यादा होता है। तो वोल्टेज गेन और करंट गेन अगर ज्यादा होगा दैट मीन्स पावर गेन जो है वो तो ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है, so this is the main reason of using
common emitter transistor as an amplifier. Next we have transconductance. Transconductance क्या होती है common emitter configuration में? It is basically the ratio of change in collector current to the change in base emitter voltage, keeping collector voltage constant. It is denoted by GM. This is equal to delta IC upon delta VBE for a constant value of output voltage VC, collector voltage VC or VCE. Now this is equal to, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, we can divide and multiply by delta IB. तो ये हो गया delta IC upon delta IB into delta IB upon delta VBE. What is delta IC upon delta IB? This is the AC current gain in common emitter configuration. So this can be written as beta AC divided by, इसको हम लिख सकते हैं as 1 upon delta VBE upon delta IB. And what is this? This is nothing but the input resistance RI, ठीक है, which is the ratio of change in input voltage to the change in base current for a constant output voltage. ठीक है, तो हमारा input voltage क्या है? VBE. input current क्या है? हमारा IB. So the transconductance of a transistor in common emitter configuration is given by this relation. ठीक है, एक थोड़ा सा इसके बारे में तुम लोगों को आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट द लीकेज करंट. ठीक है, लीकेज करंट हमको पता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. एंड ऑब्वियसली इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है विच इज रिवर्स बायस्ड, उसकी रिवर्स उसमें क्या होगा हमारा, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं हमारे वो बढ़ेंगे. क्यों? कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है ब्रेक होंगे और वी हैव लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. इफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल इंक्रीज then that means the leakage current flowing in the circuit also increases. ठीक है, तो leakage current हमारा होता क्यों है? This is because of the flow of minority charge carriers, and we know as the minority charge carriers they जो है usually increase with temperature. The leakage current जो है obviously it will also increase with temperature. Now what will be the leakage current in common base configuration and common emitter configuration? Common base configuration में जो हमारा leakage current है वो small होता है, of the order of few micro amperes होता है. लेकिन जो हमारा common emitter configuration है उसमें जो हमारा leakage current है वो quite high होता है. ये जो है इसका एक एडवांटेज, ये जो है इसका एक डिसएडवांटेज है. द लार्ज वैल्यू ऑफ लीकेज करंट इन दिस मोड इज इट्स डिसएडवांटेज. कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारी उसको हम एम्पलीफायर के उसमें यूज करते हैं. ठीक है, we usually use common emitter configuration of a transistor when we want to use transistor as an amplifier. Why? Because of its high current gain, high voltage gain as well as high power gain. लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है. इसका डिसएडवांटेज क्या है? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो लीकेज करंट होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है. क्यों ज्यादा होती है? देखो, अगर तुम लोगों को याद हो, मैं एक बार दिखाई देती हूँ. हमने जब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट की एक्सप्रेशन निकाली थी, हमारी क्या आई थी? देखो, ये आया था IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO. ठीक है, IC हमारा था आउटपुट करंट इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन. ICEO हमारा क्या है? दिस इज द लीकेज करंट इन द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन. और ये हमने देखा था, इट कम्स आउट टू बी ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा. ठीक है, और अब 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा हमारा कितना होता है? ये हमने जस्ट अभी देखा था, इट इज 1 प्लस बीटा. तो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन दैट इज ICEO कितना आया? 1 प्लस बीटा ऑफ ICBO. ICBO हमारा कितना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रिवर्स सैचुरेशन करंट और द लीकेज करंट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. इसकी वैल्यू जो है कम होती है. लीकेज करंट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी स्मॉल. ये तो कम है,
बट कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो लीकेज करंट है वो इसके साथ मल्टीप्लाइड है विद 1 प्लस बीटा। बीटा बहुत ज्यादा है, 1 प्लस बीटा और भी ज्यादा है। सो दिस शोज फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से दैट द रिवर्स लीकेज करंट इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी हाई and the reverse leakage current in common base configuration is very small, जो हमारा यहाँ पे लिखा है। एंड वी नो दैट लीकेज करंट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो and we know as the temperature increases these minority charge carriers also increases, so that means the leakage current जो है it increases with temperature। ये जो है major drawback है to use transistor in common emitter configuration। क्यों क्यों लीकेज करंट अगर टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा तो उसमें प्रॉब्लम है, ये अब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वाई वी कैन नॉट हैव लार्ज लीकेज करंट, ये हम अभी देखेंगे। सो the large value of leakage current in the common emitter mode is its a disadvantage. So the leakage current in silicon transistor जो है it is usually smaller than that in germanium. So जब हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं in common emitter configuration तो उसमें हम जो डायोड यूज करते हैं we usually prefer silicon. So we usually जो हम सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं हम usually prefer करते हैं सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। So we prefer to use silicon transistors। जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर्स जो हैं हमारे, जो हम यूज कर रहे हैं, दे आर बेसिकली सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। जो उसमें एन टाइप रीजन है, पी टाइप रीजन है, एन टाइप रीजन है, उसमें हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जो है उसके साथ जो है डोपिंग करते हैं टू गेट एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट वी हैव वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन हमारा क्या होता है? दिस इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट वोल्टेज? आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? आउटपुट करंट इनटू output resistance. Let's say the output resistance is RL, the load resistance across which we are measuring the output. Input resistance हमारा क्या होगा? The input current into input resistance. Let's say RI is the input resistance. तो output current by input current हमारा क्या होगा? That will be the current gain alpha. So we can write voltage gain as alpha into RL upon RI. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन हमारा in common emitter configuration and its value is minus beta into RL upon RI. बीटा हमारा क्या है? ये करंट गेन है in common emitter configuration। ठीक है, so these are the relations of the voltage gain in common base and common emitter configuration। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा देखो करंट गेन जो है इट इज लेस देन 1, अल्फा लेस देन 1 होता है, बीटा इज वेरी हाई 20 to 250। लीकेज करंट हमने अभी देखा कॉमन बेस में इट इज वेरी स्मॉल, ICBO और ICO कलेक्टर टू बेस वोल्टेज विद एमीटर ओपन। Common emitter में it comes out to be very large, ICEO collector to emitter voltage with base open, and it comes out to be equal to 1 plus beta into ICBO. If beta is very high, then 1 plus beta is high. So we can say that the reverse saturation current or the leakage current in common emitter configuration is very large. Next is the voltage gain। जो हमारा वोल्टेज गेन है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इट इज स्मॉल, और जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है इट इज लार्ज। देखो वोल्टेज गेन निकालने के लिए वी शुड सी द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट रेजिस्टेंस। अब देखो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। ठीक है, और इनपुट रेजिस्टेंस जो है हमारी वोल्टेज गेन के डिनोमिनेटर में आ रही है। ठीक है, अगर हमारी इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो हमारी कम है और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब इसका रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास रेशियो क्या आती है? स्मॉल। तो वोल्टेज गेन जो है इट कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और जो हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो वोल्टेज गेन आती है इट कम्स आउट टू बी large। ठीक है, so next we will see the advantages of disadvantages of using common emitter configuration। तो इस टेबल को याद रखना, जो अभी हमने शुरू में वैल्यूज बताई हैं कि ये 20 ओम्स के अराउंड होती है, ये 1 किलो ओम्स के अराउंड होती है, ये कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है, ये सिर्फ एक रफ आइडिया है कि इसके अराउंड वैल्यूज आती हैं। और जो यहाँ पर ये चीजें लिखी गई हैं, करंट गेन, लीकेज करंट
और वोल्टेज गेन, ये जो हमारी वैल्यूज हैं ये एक्चुअली हमारी एक्सपेरिमेंटली जो है मेजर्ड वैल्यूज हैं, कि जब एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया तो जो हमारे पास यूजुअली जो हमारे पास कॉमन रिजल्ट आया वो ये आया कि अल्फा लेस देन 1 है, ये हाई है, वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज, स्मॉल, लार्ज। ठीक है, ये जो है जनरलाइज्ड जो है कंपैरिजन है बिटवीन द पैरामीटर्स ऑफ कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अगर हम एक्सपेरिमेंटली इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो हर बार एग्जैक्टली 20 ओम्स या 1 मेगा ओम्स नहीं आएगा, दे विल वैरी। ठीक है, ये सिर्फ उनकी नियर अबाउट वैल्यूज है कि इसके ऑर्डर में जो है ये इट यूजुअली वेरीज, तो इसको बिल्कुल कांस्टेंट मान के मत समझ लेना। नेक्स्ट वी हैव कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं तो उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। मैंने ये चीज बताई थी कि यूजुअली हम ट्रांजिस्टर जब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है तो हम उसको यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, ये इसका सबसे मेन एप्लीकेशन है। एम्पलीफायर होता क्या है सबको पता है आई गेस, इट इज अ डिवाइस विच कैन एम्पलीफाई वीक सिग्नल्स। ये हमारा डिवाइस होता है जो यूज होता है टू एम्पलीफाई द वीक सिग्नल्स। The main use of transistor lies in its ability to amplify weak signals. तो next unit में जो है हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर जो है वो अच्छा काम करता है जब when it has high input resistance and low output resistance, when it has high input resistance and low output resistance। अब जो ट्रांजिस्टर है हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, it has very low input resistance and very high output resistance. It is just the reverse of what we desire. So it is on account of this reason we usually do not use common base circuit as a amplifier. Common base circuit को हम avoid करते हैं to be used as an amplifier. Why? Because it has a very low input resistance and very high आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको यूजुअली यूज नहीं करते। और यहाँ पर भी तुम ये चीज देखो, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम है, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और एक और चीज मैंने क्या बताई थी, एम्पलीफायर के लिए वी शुड हैव लार्ज वोल्टेज गेन। ठीक है, कॉमन कलेक्टर भी इसलिए ही यूज नहीं हो पाता। अब इसका वोल्टेज गेन जो है हमारा वो भी स्मॉल है। क्यों स्मॉल आया वोल्टेज गेन? क्योंकि करंट गेन जो है वो लेस देन 1 है। देखो यहाँ पे हमारा वोल्टेज गेन क्या था, अल्फा इंटू आर एल अपॉन आर आई। वोल्टेज गेन जो है इट इज डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट रेजिस्टेंस, बट हियर इट इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्टर अल्फा। ठीक है, in case of common base configuration this alpha is less than 1, so this is the reason why this voltage gain is so small। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज पे मत जाना कि ये 20 है, ये 1 ओमेगा ओम है। रेशियोज देखो और फिर देखो उसके साथ एक अल्फा का फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज लेस देन 1। सो दिस इज व्हाई वोल्टेज गेन जो है वो हमारा स्मॉल होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में देखो हमारे पास वोल्टेज गेन के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है, बीटा। It is depending upon the ratio also, but it is also depending upon beta, और beta जो है हमारा we know it is very large, so voltage gain जो है हमारा ज्यादा है। moreover आउटपुट रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, इनपुट रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, आर एल जो है वो हमारा आर एल तो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, और जो हमारा आर आई है दिस इज द इनपुट रेजिस्टेंस। जो इनपुट रेजिस्टेंस है हमारा वो हाई है, वो अगर हाई होगा, इनपुट रेजिस्टेंस जो सॉरी वो हमारा लो है। इनपुट रेजिस्टेंस अगर हमारा लो होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो वोल्टेज गेन है वो बढ़ेगा। तो हियर वी हैव अ लार्ज वोल्टेज गेन। तो आई होप ये सबको यहाँ पे क्लियर है व्हाई वी डू नॉट यूज कॉमन बेस सर्किट for amplifiers. Why? Because it has a very low input resistance and a very high output resistance, which is just the reverse of what we desire. What we desire, we desire high input resistance and low output resistance. Now next thing, so this shows common emitter configuration is much better as its input resistance is about 1 kilo ohms and output resistance is about 10 kilo ohms. इसका जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है वो हमारा 1 किलो ओम्स के आसपास है, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है हमारा वो 10 किलो ओम्स के आसपास है।
ऑल्सो द करंट गेन, जो इसका मेजर एडवांटेज है, current gain, voltage gain and power gain of a common emitter amplifier are much greater than that of common base. तो common collect इस वजह से जो है we use common emitter configuration as a amplifier. Next we have common collector configuration. जो हमारा common collector configuration है, अगर हम रिक्वायरमेंट देखें हमें क्या चाहिए, हाई इनपुट एंड लो आउटपुट रेजिस्टेंस, तो ये हमारा किस केस में आता है, जो हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो हाईएस्ट होती है और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो लोवेस्ट होती है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इससे तो ये हम कह सकते हैं कि जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है वो बेस्ट होनी चाहिए, would have been the best as its input resistance, as its output resistance is much smaller than the input resistance, but हम इसको क्यों नहीं यूज करते, because its voltage gain is less than unity. The common collector configuration is used when the input dynamic resistance is more important even at the loss of voltage gain. Usually हम इसको impedance matching के लिए use करते हैं। एम्पलीफायर्स के लिए हम कॉमन एमीटर्स जो है उनको ज्यादातर यूज करते हैं, हम कॉमन कलेक्टर जो है उनको अवॉइड करते हैं। वैसे तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाई इनपुट एंड द लो आउटपुट रेजिस्टेंस, बट क्या प्रॉब्लम है, इसका जो वोल्टेज गेन है वो हमारा लेस देन यूनिटी है। कॉमन एमीटर में जो हमारी इनपुट रेजिस्टेंस है वो इतनी भी ज्यादा नहीं होती और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो इतनी भी कम नहीं होती, बट अगर हम उसको कंपेयर करें विद कॉमन बेस तो उसके कंपैरिजन में वी कैन से दैट जो इनपुट रेजिस्टेंस है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में वो थोड़ी ज्यादा होती है, अराउंड 1 किलो ओम, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो जो है हमारी थोड़ी कम होती है, अराउंड 10 किलो ओम्स, इफ वी कंपेयर इट विद द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसी वजह से जो है ये पैरामीटर्स यहाँ पे स्टडी किए गए थे और इनको कंपेयर किया गया था टू सी कॉमन बेस और कॉमन एमीटर में से विच वन इज बेटर टू बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। और यहाँ से हमने देखा दिस कॉन्फ़िगरेशन comes out to be much better when we want to use transistor as an amplifier. Common collector configuration जो है वो उस हिसाब से तो बेस्ट होनी चाहिए थी, but still we usually avoid this configuration. Why? Because its voltage gain is less than unity. Amplifier का function है to amplify the voltage, ठीक है, और to amplify the power, वही नहीं कर पाएगा common collector configuration ढंग से, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन अब हमें पता चल गया किसको यूज करना है, कॉमन एमीटर को, ठीक है, लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है। द डिसएडवांटेज ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इसका जो रिवर्स लीकेज करंट है वो काफी ज्यादा होता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और हमें पता है कंसंट्रेशन जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक, if more covalent bonds will break then it will result in more minority charge carriers, if we have more minority charge carriers then we'll have more leakage current. So this may lead to the thermal runaway of the transistor. What is thermal runaway? This is the destroying of transistor with increase in temperature. Thermal runaway को हम क्या बोलते हैं? This is the destroying of transistor with increase in temperature. So since silicon transistors जो हैं they have smaller leakage current as compared to that of germanium, so we use transistor in common emitter configuration to use it as an amplifier, but here the transistors that we are using that are silicon transistors, जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं टू फॉर्म अ ट्रांजिस्टर, वो हमारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं दैट विल बी सिलिकॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कॉमन कलेक्टर को भी हम यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर, बट इतना फ्रीक्वेंटली नहीं, इट इज यूज्ड वेरी less frequently. Usually we use common emitter configuration, ठीक है। now यहाँ पर हमारा ये खत्म हो गया। now next अब हमारा इसमें एक टॉपिक बचता है दैट इज CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये हमारा जो टॉपिक है ये जो काइंडली थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो ये टॉपिक जो है अभी मैं नहीं करा रही फॉर द टाइम बिंग। आर चांद में जो है इट इज फ्रॉम पेज नंबर 349
to page number 359. ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 2 का। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर से यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। वील स्टार्ट विद यूनिट 3 फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। ये टॉपिक जो है अभी मैं नहीं करा रही क्योंकि ये हमारा थियोरेटिकल टॉपिक है, सो आई वुड सजेस्ट इसको खुद पढ़ने की कोशिश करो। अगर हमारा जब यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा एंड इफ टाइम परमिट्स, एग्जाम आने से पहले अगर यूनिट 3 कंप्लीट हो जाता है, देन आई विल डेफिनेटली start with CRO. ठीक है, for the time being I am skipping this topic and I am directly moving to the next unit, that is your unit 3, in which we'll talk about amplifiers and oscillators. So that will start from the next class onwards.